Good morning, everyone. In the last class, we did talk about the various properties related to the modulus and absolute value, that of a complex number, conjugate, in fact, of a complex number. And the following questions were given to you in your homework with this hope and expectation that you already have done these questions. In case if you have any doubt, you are free to ask any doubt to anyone. So of course, when in से third question कहा गया है express in the form of x plus iota y, you need to simplify this further. So open this square and then rationalize with 1 minus iota. Same way in second part, use a minus b का whole cube formula class 9 and iota cube तो पता ही है minus iota and then rationalization of course वो होगा ही होगा. Third, fourth हो direct LCM and simplify. Fifth also LCM. But here if you look at the symmetry, so I would recommend initially consider first and third in a same bracket, take LCM and simplify, and then take the LCM with the middle term. This term, of course, refer to 1 over minus 1 plus root 3 iota. So, of course, you are going to rationalize this. And when it is about the multiplicative inverse, of course, again, you just need to simplify this expression, get it in its simpler form, and then you know the answer is 1 by z. Or the alternative way would be consider this and take its reciprocal directly and then start rationalizing. So that way also you will be able to get the multiplicative inverse. Same way, second part, open the square. Square of a complex number is again a complex number. So you will be getting some complex number. 1 by z कर देंगे, rationalize कर देंगे, express the answer in the form of a plus iota b. So this is all about your homework which was given in the last class. So please do complete this. Further, we are going to start with few miscellaneous NCERT questions today. Check this out. Find real theta such that this expression is purely real. तो आप चेक करिए, गिवन एक्सप्रेशन इज 3 plus 2 iota sin theta over 1 minus 2 iota sin theta. So this, and obviously I am going to rationalize this because iota should not be in the denominator. So this is going to be its rationalizing factor. It's a normal multiplication in the numerator. So if you wish, you can show one extra step or you can even directly continue. But I would recommend show at least this step, and at the bottom denominator would be theta that we need to verify. वो पूरा आगे बढ़ेगा because we need to give the general solution. So this would be a square minus b square. So it is simply open the bracket 3 plus 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 आयोटा साइन थीटा. नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई तो प्लस 2 आयोटा साइन थीटा एंड लास्ट टर्म बहुत ध्यान से 2 2 दा तो 4 हो गया. बट याद रखिए आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर विच इज -1 और साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल गिव साइन स्क्वायर थीटा. नीचे क्लियरली आ जाएगा 1 आयोटा का स्क्वायर, फिर यहां माइनस माइनस प्लस कर देगा 4 साइन स्क्वायर थीटा.
एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज विदाउट आयोटा, और ये लाइक टर्म है सेकेंड एंड थर्ड, तो 6 एंड देन 2, ये 8 कर देगा इसे। सो +8 आयोटा साइन थीटा ओवर 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा. It is better if I finally express in the form of a plus iota b. So real part is separated, and then +8 sin theta over 1 + 4 sin square theta into iota. पहले भी लिख सकते थे आयोटा, वो एक ही बात है। तो अब मैंने फाइनली इसे एक्सप्रेस कर दिया है इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में मैं दो पार्ट ऐड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट था प्योरली रियल, और बी पार्ट में मान लिए कहा है प्योरली इमेजिनरी। सो चेक दिस आउट फॉर ए पार्ट। अब हम बात करेंगे फॉर प्योरली रियल। ऑफ कोर्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस विल बी 0। तो अगर मैं इसे z कह के चल रहा था तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तभी तो प्योरली रियल आएगा। और इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब 8 साइन थीटा अपॉन दिस इज इक्वल टू 0। आयोटा की टर्म ही नहीं बचेगी, नीचे तो ऑफ कोर्स 0 हो नहीं सकता। सो दैट विल गिव मी साइन थीटा इज 0। और याद रखिए साइन थीटा 0 कब होता है? साइन n pi, when n is the integer. So this is the basic idea. Recall the basic idea when I did talk about the graphs of these functions. तो साइन का ग्राफ सोचिए, 0 पर, पाई पर, 2 पाई के ऊपर, या -पाई, -2 पाई, इन सभी वैल्यूज के ऊपर इट इज टेकिंग दी वैल्यू एज 0। तो ये स्टैंडर्ड रूल की तरह याद होना चाहिए। सो आई थिंक नाउ किंशुक इट्स क्लियर। यहाँ बाई चांस ऐसा हुआ कि लास्ट में सॉल्व करने के बाद भी साइन की टर्म में ही आया था, तो साइन थीटा 0 आ गया था। बट लुकिंग एट द क्वेश्चन डायरेक्टली यू कैन नॉट कंक्लूड दिस। हो सकता था मान लो मैं इतना सा चेंज कर देता, यहां पर साइन की जगह मान लो कॉस होता, या यहाँ 3 cos थीटा लिखा होता। सो ऑफ कोर्स इन दैट केस द टोटल आंसर कंसेप्ट विल बी डिफरेंट। तो इसलिए कंसेप्चुअल चलना है, कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहेगा। When we talk about B part, purely imaginary, and of course अब imaginary होने का मतलब the real part would be 0। रियल पार्ट का मतलब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी था, तो रियल पार्ट को लिया and equate this with 0. And do remember again, denominator can't be 0. So this is 0, and this will give me sine square theta as 3/4. Right. And this will give me sine theta as ±√3/2. We already have discussed in grade 11th how to get the general solutions. There will be two different cases. So case 1 and case 2. Sine theta is √3/2. √3/2 कब होता है? π/3 के ऊपर। Sine theta is sine alpha. Theta will be n pi plus -1 power n into alpha. But at the same time, in 11th class, this formula might have been deleted because of the reduced syllabus. So you might not have done this rule.
सो व्हाट इज द वे आउट? अब ऐसे में देखिए हम क्या करेंगे, इवन इफ इट इज अबाउट द जनरल सॉल्यूशन, तो ऐसे में क्वेश्चन में अगर एग्जाम में दिया जाएगा, आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि रियल थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, समथिंग लाइक दैट। तो आपको सिर्फ अब क्या हो जाएगा, वो वाले स्पेसिफिक एंगल बताने हैं विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो हमें अब पता है केस वन में साइन कब होता है √3/2, सोच के देखिए। 60 फर्स्ट तो 60 पर होता ही है, एंड अगेन साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड पाई क्वाड्रेंट। माइनस 60। यस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई माइनस थीटा हो जाएगा, सो दैट थीटा वुड बी पाई/3, और ये एलसीएम लिया और ये दे देगा 2 पाई/3। सो ऑफ कोर्स जो आपका अगर मान लीजिए 11th में रिड्यूस्ड में आ गया था, वो हमने नहीं लिया, बट एट द सेम टाइम यही क्वेश्चन एक हमने लिमिटेड कर दिया 0 से 2 पाई में। द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन से 0 to पाई ओनली, ताकि आपको सिर्फ एक 60 डिग्री आंसर देना हो, सो दैट वे यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो डू इट द केस सेकंड इन योर होमवर्क। क्या बन रहा है, when sign is negative, so sign negative होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, so accordingly टू डिफरेंट एंगल्स हैं, वो यहां भी आ जाएंगे। Before we move on, please mark your attendance, everyone. Has everyone marked the attendance? लग नहीं रहा है। 10 स्टूडेंट्स हैं और 8 ने मार्क करी है। Now consider few questions quickly from the NCERT miscellaneous exercise. Most of the questions are very straightforward. I am not going to solve them. Check this out. ये एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, तो हम सेपरेटली सोचते हैं। ये क्या रहा था, आयोटा पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर। मैंने 16 को अलग क्यों किया, 4 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। 1/आयोटा की जब हम बात करते हैं, तो ये याद हो जाना चाहिए, दिस इज रैशनलाइज कर दिया, आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो दिस इज माइनस आयोटा। सो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो क्या दिया था, -1 प्लस माइनस आयोटा की पावर 25 और इसका क्यूब। -1 माइनस की पावर 25 तो माइनस दे देगा, और फिर आयोटा की पावर 25 सोचिए, आयोटा पावर 24 अलग हो गया, दिस इज ओनली आयोटा। क्यूब है, नेगेटिव बाहर कर दीजिए, बेटर रहेगा, सो दैट इट इज 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, अप्लाई a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला एंड सिंप्लीफाई। Check out this question.
सो ब्रैकेट से एलसीएम लेना आप स्टार्ट करेंगे। ये तो कॉमन एक ऑब्जर्वेशन आपका होगा, चेक दिस आउट। So it's a simple question, but though little bit calculative. Let me start with say few steps only. Basic step ले रहा हूं, LCM लिया, it will be 1 प्लस आयोटा इधर आ जाएगा और माइनस में 2 टाइम्स हो जाएगा क्रॉस करते हुए योर LCM, और ये अभी एज इट इज 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा। ओपन दी ब्रैकेट, तो कितना आ रहा है ये 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा ओवर, अगेन यहां मल्टीप्लीकेशन है, 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा एंड देन आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस कर देगा। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई the whole question will go wrong. So that this is -1 plus 9 iota over 5 minus 3 iota into ये चल रहा था, ऑफ कोर्स अब आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा एंड देन प्लस हो जाएगा 36। सो आई एम श्योर आप सबको क्विकली रीजन पता है कि -36 हुआ था, बट आयोटा स्क्वायर इज -1, उसने +36 दे दिया, और नीचे भी ऐसे 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा और +3 हो जाएगा, सो दैट दिस विल बी 33 प्लस 31 आयोटा ओवर 28 माइनस 10 आयोटा। Yes, of course, whichever is being discussed with you, वही सब आपका एग्जाम में रहेगा, और विद असाइनमेंट में से भी आई एम ऑलरेडी इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस जिस तरह के आपको करने हैं। अब इसे फर्दर करने के लिए दो मेथड है, या तो आप इसको डायरेक्ट रैशनलाइज कर दीजिए राइट फ्रॉम दिस कॉन्जुगेट, और थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते थे, यहां से 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो 1/2 अगर मैं बाहर कर देता हूं तो यहां बेसिकली आ जाएगा 14 माइनस 5 आयोटा, सो दैट अब मुझे रैशनलाइज करना रहेगा 14 प्लस 5 आयोटा से। सो आई एम श्योर ये आइडिया लग चुका है कि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी, तो रैशनलाइज हम इस फैक्टर की जगह 14 प्लस 5 आयोटा से कर लेते हैं, and then follow the usual method. So do it now in your homework and do match your answer from back of your NCERT book. A very similar question you will find in your assignment. बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। Check out this question. सोचे कैसे होगा। आपको Z1 एंड Z2 दिया हुआ है, आपसे ये वैल्यू पूछी है, तो बेसिक आइडिया इज सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये एक्सप्रेशन कंसिडर किया, गेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन,
substitute the values, so z1 plus z2 और ये +1 as it is, फिर z1 minus z2 and then again +1 as it is. Look for the like term, 2 3 4, 4 बचा, आयोटा से तो आयोटा कैंसल हो गया, ओवर 2 minus 1, ये 2 बच गया एंड देन माइनस 2 आयोटा, 2 कॉमन करके कैंसल हो गया, इसका मॉड है, चेक इट आउट, मॉड ऑफ 2 तो वो सिंपल 2 आ गया, और नीचे अब ये डिस्ट्रीब्यूट होकर 1 माइनस आयोटा का मॉड आ गया। और कैसे हम ये निकालते हैं, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। यस राइट अक्षत, ठीक है। Please do it first part. Again a very straightforward question. Z1 and Z2 are defined as two complex number. पूछा है रियल पार्ट ऑफ दिस, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना रहेगा। सबसे पहले मैं Z1 इंटू Z2 निकालूंगा एंड देन आगे ऑब्वियसली पूरा सिंप्लीफाई होगा। सो -4 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस +2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -3 + 4 आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट वो होता है 2 + आयोटा। Then of course I am going to consider this expression और वो इसके इक्वल बन जाएगा। How I am going to solve it further? Obviously rationalize करेंगे। So -6 minus minus +3 iota, then +8 iota and then -4 over 4 + 1। तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट प्लीज चेक कर लीजिए गलती ना हो जाए जल्दी में। सो दैट ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया, -2 + 11/5 आयोटा। फाइनली फर्स्ट पार्ट में आपसे रियल ऑफ पूछा था ये, सो व्हाट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, इसका रियल पार्ट, तो आंसर होगा -2। So second part obviously in your homework. Sir, Yes. sir, in second step, after in Z1, Z2 by conjugate of Z1, sir, it won't be +4 as it will become -4 iota square. कहाँ कह रहे हो, विच स्टेप कहाँ पर, Z1 Z2 में गलती है, प्रोडक्ट आंसर गलत है। No, sir, when we are finding the real part, हाँ sir, in the second step, uh, it will be -6 + 3 iota + 8 iota + 4. +4, एक मिनट, Yes, sir. आयोटा स्क्वायर इज माइनस, अच्छा ये सॉरी, ठीक है ठीक है, दिस इज +4, तो हाँ फिर यहाँ चेंज हो गया आंसर, राइट। वही कहना, थोड़ा जल्दी में अगर होता है तो गलती बिल्कुल हो सकती है। सो मॉडिफाई दिस, तो क्या हो जाएगा ये, नाउ दिस इज -2,
सो -2/5 अलग हो गया, so real part would be -2/5. That would be your required answer. ठीक है, please make the correction. Check out this question. Find the real number x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of this. तो ये किसके इक्वल दिया है? Conjugate of this. ये चीज आपको गिवन है, और what does that mean? x minus iota y into 3 plus 5 iota किसके इक्वल आ गया? कॉन्जुगेट ऑफ दिस विल बी, बस आयोटा का माइनस आयोटा कर दिया. नाउ यू हैव एटलीस्ट 2 डिफरेंट अप्रोचेस इसे सॉल्व करने की. ओपन द ब्रैकेट इन LHS and compare the real and imaginary parts. The other way round is think logically. ये 3 plus 5 iota डिवाइड हो गया, and now you just rationalize this and compare the real and imaginary parts. You will have your required answer. Uh, 24 5 121. बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड कंपेयर दी रियल एंड इक्वल पार्ट्स. This is little challenging. If alpha and beta are two different complex numbers, different complex numbers का मतलब clearly ये अनइक्वल है, ये आपको गिवन है, मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1. यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू. आपको एक फॉर्मूला याद दिलवा देता हूं. वी नो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, एनीवन, किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला लिस्ट में सेकंड नंबर पे बताया था, z कॉन्जुगेट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम यहां अप्लाई करने वाले. किस तरह से? आप इसे z मान लो, पूरे एक्सप्रेशन को जो अंदर पूछा है, बट इसका स्क्वायर मैं कंसीडर करने वाला हूं. तो कंसीडर दिस और इसका स्क्वायर. रीजन, इसे देखकर अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? z इंटू z बार. तो ये पूरा मेरा z हो जाएगा. एक बेसिक आइडिया समझ लीजिए, अगर अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो अंदर वाला ये एक्सप्रेशन विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z. तो ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूं. The other way, the other method, in fact, आप अल्फा को ले लिया, मान लीजिए a प्लस आयोटा b, और बीटा को ले लिया c प्लस आयोटा d. कुछ अलग से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज्यूम कर लिए और सॉल्व किया. दैट इज हाईली कैलकुलेटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड.
तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। तो चेक करिए अब हम थोड़ी प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट, इसका कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा। और फिर इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की, ये टर्म एज इट इज फर्स्ट वाली, व्हाट इज Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 conjugate minus Z2 conjugate. अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दिस इज बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट ओवर। अब ये 1 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहा, बट इसके बाद क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट लगेगा, मतलब अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इनटू बीटा कॉन्जुगेट। और फिर याद करिए z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विल बी बैक टू दी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दैट नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। यहां तक अगर आप सही पहुंच गए, इसके बाद इट्स अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर। तो प्लीज मेक इट श्योर यहां तक क्लियर है। बस अब यूजुअल मेथड, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, ये मैं इस तरह से लिख देता हूं, थोड़ा इजी लगता है। दिस इंटू दिस, ये एक साथ हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। Go for a normal multiplication in the numerator, beta into beta conjugate minus beta alpha conjugate minus alpha beta conjugate and plus alpha alpha conjugate। नॉर्मल ब्रैकेट्स सिर्फ ओपन किए हैं। नीचे अगेन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, पहले 1 के साथ किया और फिर सेकेंड टर्म इसके साथ, तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एंड देन माइनस माइनस प्लस हो गया। बस इनको सिस्टमैटिक वे में लिख रहा हूं, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, किसी भी ऑर्डर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट, अब फिर से सोचिए व्हाट इज z इंटू जेड बार, इट इज मैग्नीट्यूड z एक तरह से, राइट। तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म दे देगा ये, नेक्स्ट एज इट इज, नेक्स्ट एज इट इज, एंड नेक्स्ट टर्म फिर ये दे देगा अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या बनेगा, फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज, ये क्या होगा, इसके इक्वल, ये क्या होगा, इसके इक्वल। और फिर याद रखिए अब आपको एक चीज गिवन थी, मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1, तो ऑब्वियस है इसका स्क्वायर भी 1 होगा। सो दैट फर्स्ट टर्म में क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर था तो ये 1 लिख दूंगा इसकी जगह, बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज।
और नीचे फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज, और ये 1 के इक्वल है, तो सिर्फ बच जाएगा ये वैल्यू। और अब अगर आप ध्यान से नोट करें, ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम चीज आ गई है, तो दे विल गेट कैंसल्ड आउट, होल एक्सप्रेशन ऊपर और नीचे कट जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 1। सिंपली 1 के इक्वल आ गया। दैट इज, ये किससे चलना शुरू कर रहे थे हम, ये चीज। तो ये एक्सप्रेशन जो है, इट्स वैल्यू इज कमिंग आउट एज 1, और दिस विल बी, आपसे तो ये पूछा था ये वैल्यू, तो यहां आकर प्लस माइनस हो जाएगा। बट याद रखिए, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ऐसे जाने के बजाय हम मॉड को वहां पर खोल कर सॉल्व नहीं कर सकते? कहां पर नहीं कर सकते, मतलब आई एम नॉट गेटिंग। सर, जैसे कि हमें गिवन था b माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसमें मॉड्यूलस अलग करके फिर बीटा मॉड माइनस अल्फा मॉड। बिल्कुल कर सकते हैं आपने, पर उस केस में अल्फा और बीटा एज्यूम कर लिए, दो नो कॉम्प्लेक्स सर, नंबर। एज्यूम नहीं किए। सी अगेन, मैं वही कह रहा हूं कि देयर आर दी मल्टीपल वेज विच आर पॉसिबल। हो सकता है इससे डिफिकल्ट हो या इससे इजी भी हो सकता है, सो देयर इज नो डिनायल टू दैट फैक्ट। इफ द कंसेप्ट इज परफेक्ट, कैलकुलेशंस ओके हैं, यू कैन ऑलवेज यूज दैट। तो यू डू वन थिंग, जो आप सॉल्यूशन सोच रहे हैं, बता रहे हैं, जस्ट क्लिक दैट एंड शेयर ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप, कॉमन क्लासरूम में आप वो शेयर करिए, आई विल लुक इनटू दैट। फाइन। Everyone, please mark your attendance. Please mark your attendance quickly. Chale, you can now leave the class. थैंक यू सर, बाय। Yeah, thank you. Bye.